students. So in the previous lecture we did the working of electrochemical cell and a bit about electrochemical series. So I would just like to repeat कि electrochemical series अपने कोल की सी the arrangement of all the known species in the increasing या decreasing order of their reduction potential या oxidation potential values. ठीक है ना? ते उस दियां applications फिर अपन ने कीतियां सी. First application was कि अपन oxidizing ਤੇ reducing agents ਦੀਆਂ strengths ਨੂੰ compare ਕਰ ਸਕਦੇ हैं. Number 2, अगर अपन कोई भी दो स्पीशीज लेके उस तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मुलेट करिए तो अपन उस सेल तो कितना पोटेंशियल मिलेगा, दैट कैन बी डन. एंड थर्ड एप्लीकेशन वाज कि अपन किसी रिएक्शन दी फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? Then we did about electrochemical cell. ठीक है कि वो कितना वर्क कर रहे हैं बच्चे. ठीक है, आपा ने कीता कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होएगा उसकी रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल घट होएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी. एंड इन्हां दोनों तो आपां नूं एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगी जिसनूं आपां ने कहा सी सेल पोटेंशियल या फिर EMF ऑफ द सेल, जिसका फॉर्मूला वाज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. एक बच्चे होर जो ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ E ਸੈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that potential is reduction potential. अगर तुसी इत्थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स यूज करोगे पहली गल तो फॉर्मूला चेंज होएगा एंड सेकेंडली उन्हां दे साइंस भी चेंज होणगे. सो आपां ने कहा सी कि आपां जिन्नियां भी कैलकुलेशंस करांगे या जिन्ने भी फॉर्मूलास करांगे आपां उहदे च रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है. अगर आपां नूं किते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिता है तो पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नूं रिडक्शन पोटेंशियल च कन्वर्ट कर लो. बट उस तो बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਨਾ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਪਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਐਨੋਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ E रिडक्शन पोटेंशियल की गल हो रही है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की. बट अगेन मैं सानू कह रहा कि मैं सानू जिन्ने भी फॉर्मूलाज कराऊंगा आपां सारियां दे विच रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है बच्चे, क्योंकि अगे होर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ते बच्चों की एक कॉमन कन्फ्यूजन हुंदी है कि सर तुसी नेगेटिव सिंबल करवाया सी उत्थे पॉजिटिव साइन है, तुसी जो चीज न्यूमरेटर च लिखाई सी उन्होंने डिनोमिनेटर च दित्ती है, जो डिनोमिनेटर सी वो न्यूमरेटर च है, तो सारे उल्टे ही होणगे अगर आप फॉर्मूला ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਐਨੋਡ ਮਾਈਨਸ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕੈਥੋਡ. ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ. ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ. ਐਂਡ बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद आवर मेजर टॉपिक ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ ਕਰ ਲਈਏ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਇੱਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ. ਦੈਨ EMF ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ. And in the notes these definitions are given on page number 13. So ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕੈਥੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? the ability of a species ਜਾਂ element to get reduced यानी कि to gain the electrons. So ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? the ability of an electrode to gain electrons is known as its reduction potential, and similarly the ability of an electrode to lose electrons is called oxidation potential.
ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਟੂ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स is known as electrode potential. Done. Now, factors affecting electrode potential. So बच्चे ये electrode potential, oxidation potential या reduction potential किहड़े-किहड़े factors दे ऊपर depend करदा है. Number 1, of course ਆਪਾਂ ने कीता कि ਜਿਹੜੇ metals है सब दे potentials अलग-अलग है. So सब तो पहला nature of the metal. सो जिस मेटल का तुसी इलैक्ट्रोड लिया उस मेटल की नेचर के उपर ਉਹਦਾ पोटेंशियल डिपेंड करूगा. जिवें आपां ने कीता कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम सब तो घट है, सोडियम उस तो ज्यादा, मैग्नीशियम उस तो ज्यादा एंड सो ऑन, एंड मैक्सिमम इज फॉर क्लोरीन. सो नेचर ऑफ द मेटल. सेकंड जो अपना नेक्स्ट मेजर टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन. मैं तुहानू कल भी दस्सिया सी जदों आपां ने इलैक्ट्रोकैमिकल सैल कीता बच्चे कि आपां दोनों तरफ आयंस दी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लगती सी, 1 मोलर. ते मैं तुहानू कहा सी कि अगर वो 1 मोलर तो चेंज होगी तो अपना पोटेंशियल चेंज होगा. तो जिहड़ा अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, डिपेंडेंस ऑफ इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. थर्ड फैक्टर इज टेंपरेचर. ठीक है ना, क्योंकि जब आप टेंपरेचर बढ़ावांगे बच्चे तो ऑफ कोर्स उसदे नाल कंडक्टेंस ते फर्क पएगा, आयनाइजेशन ते फर्क पएगा, उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी ते फर्क पएगा, जो सोडा सॉल्वेंट है उसदी विस्कोसिटी ते फर्क पएगा. तो ऑफ कोर्स जेड़ा अपन नूं पोटेंशियल मिल रहा है उसदे ऊपर भी फर्क पएगा. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिस दे ऊपर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करदा है. ठीक है. नाउ हुण आपां मूव कर गए ईएमएफ ते. So EMF the definition was reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. So EMF ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? So ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ डिफाइन ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि the EMF is defined as the difference between the potentials, the reduction potentials of the two electrodes. ठीक है ना? कैथोड ते एनोड दे रिडक्शन पोटेंशियल्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दे डिफरेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, EMF. नाउ दूसरी डेफिनेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ डिफरेंस ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ पोटेंशियल ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जितना ਇਹ डिफरेंस ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ डिफरेंस डिक्रीज ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ अपने कोल जो EMF है वो घटी जाऊगा. ठीक है ना. ये भी आपां कॉन्सेंट्रेशन वाले टॉपिक दे विच कवर करांगे कि जिवें जिवें सेल वर्क करेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीज होता जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इंक्रीज होता जाएगा. अल्टीमेटली ये दोनों की हो जाएंगे इक्वल एंड योर सेल विल स्टॉप वर्किंग. डन. नाउ सो EMF की डेफिनेशन, it is the difference between the electrode potentials of the two electrodes. दूसरी definition, it is the driving force for the working of an electrochemical cell. Again, it arises from the differences in the reduction potentials of cathode and anode. ठीक है. Now, factors affecting EMF. बच्चे देखो EMF depend किस पे कर रहे हैं, कैथोड और एनोड दे potentials दे ऊपर. तो potentials किस पे depend कर रहे हैं, नेचर ऑफ द कैथोड एनोड, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. तो ऑफ कोर्स ईएमएफ भी इन्हां तीनों फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा. सो ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. थर्डली आप लिख देंगे नेचर ऑफ द मेटल्स फॉर्मिंग द टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है ना. सो दीज आर सम जनरल डेफिनेशंस. अच्छा, नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. वैसे आप कर ही लिया गल्ला गल्ला च, बट स्टिल एक टॉपिक आऊगा. तुसी फिजिक्स दे विच भी पढ़िया होना है डिफरेंसेस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस. जो मेन डिफरेंस है उसको मैं दस देना है कि EMF की हुंदा बच्चे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि द सर्किट इज एन ओपन सर्किट. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा है जदों करंट फ्लो कर रहा हुंदा है. ठीक है. Second major difference is कि EMF is the maximum potential that can be obtained from the cell, जबकि potential difference of course की होएगा
ਉਹ EMF ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ +1 ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ हैं। ठीक है ना, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ they are not absolute values, they are relative values। relative मतलब ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 0, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। So our next topic is SHE or NHE. So they stand for बच्चे standard hydrogen electrode और normal hydrogen electrode. So बच्चे आप इत्थे कहना की चाह रहे हैं, like आपा ने किता कि copper 2 plus 2 copper, the reduction potential is 0.34 volts. Fine. ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, these are not absolute values। absolute ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਕਾਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ 0.34 ਵੋਲਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪੀਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ योर आंसर विल बी कि दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, है ना? क्योंकि अगर तुसी इसनु किसी ऐसे मेटल या नॉन मेटल नाल कनेक्ट करोगे जिसका पोटेंशियल इस तो ज्यादा होगा, फिर उसकी रिडक्शन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल तुसी हुन इहदे कंपैरिजन च रखता सिल्वर दा रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.80, इस तो ज्यादा है, तो सिल्वर विल बी रिड्यूस्ड एंड कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर बच्चे मैं सिल्वर दी जगह पे कोई इस तो ज्यादा एक्टिव मेटल रखा होगा, फॉर एग्जांपल जिंक, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर तो घट है, तो कॉपर की रिडक्शन होएगी और जिंक की ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ कि these are not absolute values, these are relative values, कि these have value, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ we are comparing them with other metals। ठीक है ना, ਇਕੱਲੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਲ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ देयर ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਪਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟੇਬਲ। ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਲਵਰ, यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, बट विद टाइम साल 2 साल 3 साल बाद इट गेट्स टार्निश्ड, ब्लैकनिंग हो जाती है। उस तो ऊपर गोल्ड एंड प्लैटिनम कदे खराब ही नहीं होंगे बच्चे। सो जिवें जिवें रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा मैटल इनएक्टिव होता जाता है, जिन्हां दे रिडक्शन पोटेंशियल्स घट ने दे आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, दे रिएक्ट इजीली, दे गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। नाउ so again we'll come to the point कि these are not absolute values, these are relative values, they are calculated by comparing with someone। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन ने फिक्स कर लिया 0। जिन्ने भी ये पोटेंशियल्स दी वैल्यूज मैं तुहानू लिखवाई हैं, they all have been calculated by using this hydrogen electrode। इसमें comparatively मतलब इसमें comparatively copper दा potential is greater by 0.34। like for example just एक सुनो एग्जांपल दे तौर पे दस रहे हैं कि अगर मैं इसनू 1 assume कर लंदा, for example मैं हाइड्रोजन नू 1 assume कर लंदा, तो मेरे कॉपर का भी पोटेंशियल कितना होना सी
1.34. You getting a point? ठीक है ना? So all these values have been calculated by keeping hydrogen as a standard. Now ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਟੇਕ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ। So what we actually do is ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬੱਚੇ 1 ਮੋਲਰ HCl। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੇ H2 ਗੈਸ। 1 ਬਾਰ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਹ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड which is an inert electrode, यानी कि अपना इलेक्ट्रोड जो है वो हुन रिएक्शन च पार्टिसिपेट नहीं करूगा, ना ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी ते ना ही उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। दूसरी तरफ ਆਪਾਂ जो इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं वो केड़ा लेने हैं जेडे मेटल का ਆਪਾਂ ने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग, अगर मैं कॉपर का कैलकुलेट करना है तो मैं एक कॉपर रॉड लऊंगा एंड इस दे विच आपां कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लवांगे जिस दी कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 मोलर बचे, जिस दी कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 मोलर। फाइन। नाउ सिमिलरली मैं एक होर इलेक्ट्रोकैमिकल सेल तैयार कर रहे हैं। 1 मोलर HCl ले लिया मैं उस दे विच 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ते आई एम पासिंग हाइड्रोजन गैस। दोनों हाफ सेल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय द इन्वर्टेड U ट्यूब नोन एज सॉल्ट ब्रिज एंड हुन इधरली साइड पे बच्चे मैं कैलकुलेट कर रहे हैं द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक। So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆ 1 molar zinc sulfate and I dipped a zinc rod in this and similarly ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ neutral platinum electrode and an inverted U tube known as salt bridge. Done with it? Now ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ -0.76। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ -0.76 ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ। सो अपने को रीडिंग आएगी 0.76 वोल्ट। द रीजन बीइंग कि आंसर किवें कैलकुलेट होया 0 माइनस -0.76 E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। सिमिलरली ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0.34 ਵੋਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ 0.34 माइनस 0, ठीक है। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर की रिडक्शन होएगी एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होएगी। नाउ हुन देखो बच्चे आपा पहला वोल्टमीटर की रीडिंग चेक करांगे। अपना फर्स्ट जॉब की होगा, सो देखो आ चीज तो अपने बाद में करनी है, इस चीज का अपन लोड ही नहीं। सो देखो कि ये पोटेंशियल्स कितना अपने मेजर कीते हैं। सो मैंने इतना पता लग गया कि जेड़ा मेरे को E0 फॉर जिंक 2+2 जिंक है that is 0.76 वोल्ट। साइन की है वो वाले मेरे को नहीं पता। सिमिलरली जो E0 फॉर कॉपर 2+2 कॉपर है that is
0.34 वोल्ट। जिन्नी मेरी वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई वो इसे करके ही है क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो 0 ही है बच्चे। हुन नेक्स्ट मेरा मोटिव की है, मैंने दा साइन चेक करना है। तो साइन मैं किवें चेक करूंगा? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हुन इधर देखो, इथे कॉपर इज कैथोड, हाइड्रोजन इज एनोड। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन नालों ज्यादा हुंदा है, तो वही चीज आपको चेक करनी है। हुन की होगा, इथे मेरे को दोनों ऑप्शंस है, H पॉजिटिव तो H2 भी बन सकता है, H2 तो H पॉजिटिव भी बन सकता है। तो सिंस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इथे की हो रही होगी ऑक्सीडेशन। So H2 gives you 2H positive plus 2 electrons. हाइड्रोजन दी की होगी ऑक्सीडेशन। सो जेडे इलेक्ट्रॉन्स ने they will be traveling from hydrogen to copper. So जो हाइड्रोजन टू कॉपर ट्रैवल कर रहे ने, that means हाइड्रोजन is negative and copper is positive. So copper का रिडक्शन पोटेंशियल is plus 0.34 volt. Done. नाउ हुन इथे की होएगा बच्चे? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुंदा है, हाइड्रोजन नालों घट। तो जिंक दी होएगी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन दी की होएगी रिडक्शन। सो इथे मेरे कोल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड च आह वाली रिएक्शन उल्टी हो रही होएगी। 2H पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2, क्योंकि हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होके अपन ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स देगा, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ they will be traveling from zinc to hydrogen. So zinc is your anode, hydrogen is your cathode. So zinc का पोटेंशियल की हो गया नेगेटिव। You getting the point? ठीक है जी। सो पहला अपन ने वोल्ट मीटर दी अपने दी रीडिंग चेक करनी है। सिर्फ वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करने तो बाद आपने देखना है कि हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इट मींस जेड़ा मेटल है सोडा वो कैथोड का काम कर रहे हैं, तो इट मींस वो पॉजिटिव आएगा। अगर हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है तो इट मींस जेड़ा सोडा मेटल है दैट इज एक्टिंग एज एनोड, तो क्या होगा? नेगेटिव। सो दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द मेटल्स। So we do it by comparing it with SHE or we call it NHE। हाँ जी, हुन देखो सोनू क्वेश्चन आया, लाइक एक सिंपल जी गल है। फॉर एग्जांपल सोनू क्वेश्चन आता कि कॉपर का जेड़ा रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों लिखते हैं ਆਪਾਂ, है ना? तो सोडा आंसर की होगा, बिकॉज when we place it with normal hydrogen electrode the electrons travel from hydrogen electrode to copper electrode through the external circuit. So since electrons hydrogen to copper वाल आ रहे हैं, तो copper is a positive electrode, cathode। ठीक है। Similarly अगर अपन नेगेटिव आंसर आता है तो अपन क्या कहेंगे कि electrons travel from zinc to hydrogen electrode. So zinc is acting as anode and that is why its potential is negative. Done बच्चे। So this is about the working of and construction of normal hydrogen electrode या standard hydrogen electrode। हुन आपां ने करना है कि जिहड़ा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुंदा है इस दियां कुछ डिसएडवांटेजेस है वो किहड़ियां-किहड़ियां बच्चे। सो बच्चे डिसएडवांटेजेस ऑफ NHE और SHE। सो देखो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पहली डिसएडवांटेज है दैट इज कि इट गेट्स इजीली पॉइजन्ड। अगर अपने को इवन ट्रेसेस ऑफ इंप्योरिटीज भी होन तां भी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी वर्किंग अफेक्ट हो जाती है। ठीक है ना? सो इट गेट्स इजीली पॉइजन्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट इंप्योरिटीज बच्चे। ठीक है ना? नंबर टू देखो हुन आपने जो आयंस है एंड जो गैस है, ठीक है ना, आपने आयंस लगातार H पॉजिटिव आयंस लगातार 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे मेंटेन करने हैं बच्चे। अगर 1 मोलर तो अगेन देखो वेरी करेंगे तो आपने की किया, देखो अपने जेडे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे फैक्टर सीगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, वो जो आपने की कीता सीखता
नेचर ऑफ द मेटल, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड टेम्परेचर। सो अगर ड्यूरिंग द वर्किंग इन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर गई तो अपने पोटेंशियल दी रीडिंग दे ऊपर इफेक्ट होगा। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮੋਲਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि it is difficult to maintain the 1 molar concentration of H positive ions, and third इसी point ਨੂੰ ਆਪਾਂ further elaborate करता कि again 1 atmosphere या 1 bar pressure ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So these are the major disadvantages of hydrogen electrode। ठीक है। So कॉमनली वैसे देखो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, बट ड्यू टू दीज डिसएडवांटेजेस कई बार आप होर इलेक्ट्रोड्स भी यूज कर लेते हैं एज रेफरेंस, जिन्होंने आप फॉर एग्जांपल एक 1 नॉर्मल कैलोमल होंगे, एक अपने पास सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स होंगे ने, ये मेंशनड है ऑन पेज नंबर, सुनो मैं दस देना है, हाँ जी, पेज नंबर 16 ਦੇ ਉੱਪਰ। सो सैचुरेटेड कैलोमल एंड 1 नॉर्मल कैलोमल। जो सैचुरेटेड कैलोमल ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਾ पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ 0.2415 वोल्ट्स, मैं लिख देना है सैचुरेटेड कैलोमल, कैलोमल स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। ठीक है ना। 0.2415 वोल्ट्स, जिदा ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 0 ਵੋਲਟ, ਐਦਾਂ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਕੈਲੋਮਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 0.2415 ਵੋਲਟਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 1 ਨਾਰਮਲ ਕੈਲੋਮਲ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ 0.2800 ਵੋਲਟ। फाइन। सो दीज आर कुछ होर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तौर पे दी जगह पे यूज कर सकते हैं, बट यस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट SHE। ठीक है। एंड विद दिस आपां इलेक्ट्रोकैमिकल सैल दी वर्किंग खत्म कर ली बच्चे। हुण आपां अज दे मेजर टॉपिक ते आने हैं, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। सो बच्चे हुण आपां स्टार्ट करते हैं जो अपना सेकंड पॉइंट सीगा इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल। ठीक है। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो कल भी आपां ने कीता सी, इफ यू रिमेंबर कि जेड़े आपां ने 2 हाफ सेल्स बनाए सी जिंक एंड कॉपर, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, उसदे ब्रैकेट्स में लिखिया सी 1 मोलर, याद है ना। दूसरी तरफ अपने कोल जिंक सॉल्यूशन सीगा, जिंक सल्फेट, उसके ब्रैकेट्स भी अपन ने लिखा सी 1 मोलर। इस 1 मोलर की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। व्हाई इज दिस 1 मोलर रिटन? जिवें जिवें ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होएगी बच्चे, जेड़ा पोटेंशियल अपन ਨੂੰ मिल रहा है, देखो जस्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करन तो पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ कोरिलेट कर दिंदा एक बार। एक तो बच्चे देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा दसदा हुंदा कि ਜਦੋਂ भी अपन ने कोई टॉपिक स्टार्ट करना है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਨॉन स्टिक क्वेश्चन नॉन स्टिक क्वेश्चन नॉन स्टिक क्वेश्चन, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ नॉन स्टिक क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ नॉन स्टिक क्वेश्चन इज अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। कि अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी तो पोटेंशियल के ऊपर की असर होगा। ਹੁਣ देखो बच्चे, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द नॉन स्टिक क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही दस देना है। देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ਤੇ कॉन्सेंट्रेशन की सी आयंस ਦੀ, याद है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, जिंक gives you Zn+2 and copper +2 gives you copper, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕॉन्सेंट्रेशन ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? आयंस ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 1 ਮੋਲਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਐਨੋਡ। ਹੁਣ देखो बच्चे जिवें जिवें कैथोड ते की होएगी रिडक्शन, देखो ध्यान नाल
कैथोड ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਾਪਰ यानी कि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है एनोड ते ऑक्सीडेशन होगी यानी कि जिंक तो की बनता जाऊगा जिंक आयंस सो कैथोड ते आयंस की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाऊगी एनोड ते आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाऊगी कैथोड का पोटेंशियल घटता जाऊगा एनोड का पोटेंशियल बढ़ता जाऊगा अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाएंगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਐਂਡ योर सेल will stop working ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ and this shows the dependence of potential upon concentration ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ एक क्वेश्चन भी है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why an electrochemical cell stops working after a stipulated time period ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ the difference between the potentials of cathode and anode ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨੋਡ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਬਿਕਮ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ both become equal and the difference becomes 0 so at this stage the electrochemical cell stops working ठीक है now again I repeat कि non-stick equation में अपन जिन्ने भी formulas करांगे it will be in terms of reduction potentials ठीक है राधे so देखो non-stick equation को अपन कितना यूज करते हैं so पहला अपन करांगे बच्चे in terms of single electrodes कि देखो अपन ने जिंक ते कॉपर को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया so let it be this is your metal जिसकी वैलेंसी is n इसने n इलेक्ट्रॉन्स गेन कीते और की बन गया मेटल फाइन तो जो अपनी नॉन इक्वेशन है फॉर दिस इट विल बी E is equal to so E क्या है किसी भी स्टेज पे जो पोटेंशियल है is equal to E नॉट जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो स्टार्टिंग सीगा जिਵੇਂ कि कॉपर ਦਾ ਕਿੰਨਾ 0.34 minus 0.0591 सॉरी इससे अपन बाद में जानते हैं जो एक्चुअल नॉन स्टिक इक्वेशन है दैट इज minus RT upon NF natural log of बच्चे प्रोडक्ट्स दी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स दी कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਸਪੀਸ਼ੀ अपॉन ਰਿਡਿਊਸ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ you always have to remember it natural log of प्रोडक्ट्स दी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स दी ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ मैं नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर रहे हैं सो माय इक्वेशन बिकम्स E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log of सिंस बच्चे जो प्योर मेटल दी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑलवेज 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस ठीक है सो देखो एट द एंड ऑफ द डे अपन ने प्योर मेटल तक गायब भी करता ठीक है ना अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस हुन देखो अपन को पता है हां जी बच्चे जिन्नियां भी रीडिंग्स लेतियां जांदी हैं दे आर टेकन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन ठीक है सो हम ध्यान ਨਾਲ देखो 2.303 इज अ फिक्स्ड वैल्यू आर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ +1 स्टेट्स ऑफ मैटर ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट टेंपरेचर ਆਪਾਂ ਨੇ ऑलरेडी फिक्स करता 298 केल्विन हां जी फैराडे ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕੂਲम्स ਦੇ ਵਿੱਚ 96500 ਕੂਲम्स सो डोंट यू थिंक कि कल्ले n ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ
कांस्टेंट, क्योंकि n वेरी करूंगा डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग मेटल्स। अगर किसी मेटल की वैलेंसी +2 है तो 2 आऊगा, अगर कोई +3 है तो 3 आऊगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज ਨੂੰ पुट करके मेरे को फाइनल नर्न्स की इक्वेशन आ गई। कितना बच्चे देखो, so our final Nernst equation is E is equal to E naught minus 0.0591 upon n log of concentration of products upon reactants. So इस केस च क्या आ जाएगा, m upon mn plus, and since m दी वैल्यू तो बच्चे कांस्टेंट है, so 1 अपॉन आ जाएगा mn प्लस दी कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, सो दिस इज आवर फाइनल नर्न्स इक्वेशन। अच्छा, अपना टाइम सेव करन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.06 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਜਾਂ 100s ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो जे अपन थोड़ा सा पॉइंट्स च फर्क पावांगे तो अपने आंसर पे फर्क पड़ेगा। सो बट यू कैन डू इट, 0.059 है तो यू कैन टेक इट एज 0.06। ठीक है ना, तो थोड़े आंसर पे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट स्टार्ट यूजिंग द सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो दिस इज योर Nernst equation फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड। हुण आपां करांगे बच्चे फॉर अ कंप्लीट सेल, ते ओदियां कुछ एग्जांपल्स मैं तुहानूं करवाऊंगा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ E cell is equal to E of cathode minus E of anode। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਿਸ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਜੋ ਐਨੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਨੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ आयंस ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰਆਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਈ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਲਸ ਲਈ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आप बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट करते हैं, जिथों आप स्टार्टिंग तो पढ़ते हैं। सो देखो, एक डेनियल सेल जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स यू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। सो इथों ही आप स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है ना, नाउ E naught ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਰਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0.34, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ -0.76। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ E naught ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 0.34 -0.76, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1.10 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1.10 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। So 1.10 volt minus 0.0591 upon n। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਾਪਰ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਾਪਰ 2 ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ 2 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ n here is 2। ਡਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ। log ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ अपॉन रिएक्टेंट्स दी कॉन्सेंट्रेशन। इसनू भी चेंज कर लो, बल्कि जो एग्जैक्ट अपनी इक्वेशन होती है दैट इज प्रोडक्ट्स दी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट
and reactants ਦੀ concentration raised to power its stoichiometric coefficient। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ 2+। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਾਪਰ ਦੀ concentration ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿੰਕ 2+ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 है क्योंकि जिंक के आगे कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। एंड सिमिलरली रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जिंक एंड कॉपर 2+ है, सो जिंक का 1 है, सो इथे जाऊगा कॉपर 2+, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगेन 1 है। सो दिस इज आवर नर्म्स इक्वेशन फॉर द Daniell cell। E is equal to 1.10 minus 0.0591 upon 2 log of zinc 2+ the concentration upon copper 2+ the concentration। I hope done, ठीक है। Now let it be your question is कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕਾਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.34 ਵੋਲਟ and reduction potential of silver ਆਪਾਂ ਨੂੰ given ਹੈ ਬੱਚੇ 0.80 volt। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਕਾਪਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਕਾਪਰ 2+, दोनों पासे चार्ज सेम होना चाहिए, सो सिल्वर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। आई होप डन, ठीक है। हुन मैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। E0 इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.34 यानी कि 0.46 वोल्ट्स। ए E0 दी वैल्यू आ गई। हुन ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਰਮਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। सो E0 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ 0.46 वोल्ट। डन। एन दी वैल्यू, सो एक सिंगल कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, 2 सिल्वर्स मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, एंड ਇੱਥੇ भी कितना आएगा बच्चे 2। ਹੁਣ ਆ ਜੋ log of, सो प्रोडक्ट कौन है बच्चे ਇੱਥੇ कॉपर 2+, सो ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ कॉपर 2+, सिल्वर प्लस द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, सो ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ सिल्वर प्लस रेज टू द पावर 2। सो ये चीज भूलनी नहीं है बच्चे, एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है ना। सो सिल्वर प्लस द स्क्वायर, अगे अपन ने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लगानी है। डन। सो दिस इज द नर्म्सट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। डन बच्चे। ऐदा ही ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਲੇ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼, ਸੋ ਲਿਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ कि tin is being oxidized from tin+2 to tin+4 and let's say कि aluminium is copper is being reduced from copper+2 to copper। Fine। So this is your Nernst equation। अपन ने इस Nernst equation ਲਈ इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है ना। एंड लेट इट बी अपन ਨੂੰ रिडक्शन पोटेंशियल चलो अपन हाइपोथेटिकल एज्यूम कर लेते हैं कि copper 2+2 copper अपन देता है x एंड tin+4 to tin अपन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ y, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ x ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ y ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ठीक है ना, क्योंकि रिडक्शन कॉपर ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ है तो ऑफ कोर्स x is greater than y, x is greater than y। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ पोटेंशियल ਜ਼ਿਆਦਾ होएगा। नाउ जो E0 आएगा that will be equal to of course x minus y, reduction potential of cathode minus reduction potential of anode।
ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਇਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਆਇਨਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ मतलब इदा का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर दूसरा आयन ही दे दे अपन ठीक है ना नाउ योर नॉन्स इक्वेशन विल बी सो देखो E नॉट की जगह पे मैं पुट करूंगा जो भी आ जाएगा सॉल्व करके x - y तो ठीक है सो मैं दोबारा ही लिख लेते हैं सो देखो अपनी नॉन्स इक्वेशन विल बी E is equal to E नॉट minus 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं एंड टिन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं सो n विल बी 2 log ऑफ प्रोडक्ट्स दी कंसंट्रेशन सो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे मेरे को इक्को ही आयन है Sn+4 अपॉन रिएक्टेंट्स बच्चे रिएक्टेंट्स दोनों ही आयन्स है तो दोनों दी कंसंट्रेशन गिवन होएगी सो अपने को आएगा Sn+2 into कॉपर +2 दी कंसंट्रेशन अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ डन है टू ठीक है सो अगर किसी स्पीशी ਦੇ दोनों तरफ आयंस ही मेंशनड है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ दोनों इंक्लूड करने पैणगे ठीक है ना ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਪਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ स्पीशी ਅਪਨ ਰਿਡਿਊਸ स्पीशी ठीक है ना क्योंकि फिर बच्चे सिर्फ वही स्पीशी ले लेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है बट अपन ने सारे आयंस कंसीडर करने हैं ठीक है ना नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे सो सपोज अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मुलेट कर रहे हैं फ्रॉम एक आयन अपना है बच्चे एल्यूमिनियम let it be upon whose reduction potential given is minus 1.2 volts and the other ion taken is for example चलो iron नाम मान लो iron 2 plus 2 iron reduction potential is minus 0.44 volt ਹੁਣ अगेन अपन ने नॉन्स इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है तो ऑफ कोर्स रिडक्शन आयरन दी होगी ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम सो आयरन विल बी रिड्यूस्ड एज फॉलोज आयरन 2 प्लस तो आयरन बन गया एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन बच्चे एल्यूमिनियम तो बन गया एल्यूमिनियम 3 प्लस अपन दोनों तरफ चार्ज नु बैलेंस करांगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग सो आयरन दे अगे बच्चे 3 लग जाएगा एंड एल्यूमिनियम दे अगे 2 लग जाएगा सो 2 3s are 6 and 3 2s are 6 डन E नॉट अपन कैलकुलेट करांगे दिस माइनस दिस सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 56 0.76 सो 0.76 वोल्ट आई होप की कैलकुलेशन सही है जो नहीं भी सही है तो तुम चेक कर लियो ठीक है सो बच्चे अपने को एना स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गया हुन अपन नॉन्स इक्वेशन लिखांगे इसकी E is equal to E naught माइनस 0.0591 अपॉन बचे n की वैल्यू कितनी आएगी 3 2s are 6 2 3s are 6 सो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना सो n will be 6 here ठीक है ना सो ये भी एग्जांपल अपन ने डिस्कस की थी है जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ n ठीक है ना कि n कितना पुट करना अपन log ऑफ सो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे बचे एल्यूमिनियम 3 प्लस द स्क्वायर एंड रिएक्टेंट्स वाली साइड पे Fe2 plus the cube so अपनी नॉन्स इक्वेशन is E is equal to 0.76 minus 0.0591 upon 6 log of aluminium 3 plus the square upon Fe2 plus the cube बच्चे ठीक है now the last example जिस दे विच ਆਪਾਂ कंसीडर करांगे gaseous molecules सो हम ध्यान नाल देखना है सो देखो लेट इट बी अपन बच्चे अपना सेल गिवन है कि E नॉट फॉर क्लोरीन 2 क्लोरीन नेगेटिव
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ E0 ਫॉर H+ to H2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਵੋਲਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ एंड E0 फॉर copper 2+ to copper is 0.34 वोल्ट ठीक है सो कॉपर दी होएगी रिडक्शन एंड हाइड्रोजन दी होएगी ऑक्सीडेशन ठीक है सो बच्चे अपनी सेल रिएक्शन की बनूगी सो कॉपर विल बी रिड्यूस्ड डन हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड सो H2 प्लस 2H+। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਇਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.1 ਮੋਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.01 ਮੋਲਰ एंड ये तो बच्चे यूनिटी है कॉन्सेंट्रेशन बट आपको ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जो गैस ਹੁੰਦੀ ਹੈ उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है एंड उसका पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है मेरी गल समझ में ना जो आयंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक्वस सॉल्यूशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ जबकि गैसेस ਦੀ कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है ਤੇ पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है सो ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाइड्रोजन ਦੀ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है फिर तो बच्चे कोई चक्कर ही नहीं अगर पार्शियल प्रेशर गिवन है लेट इट बी हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर उन्होंने सुन देता 0.2 एटमॉस्फेयर तो हम देखो अपन नॉन्स्ट इक्वेशन कितना फॉर्मुलेट करेंगे कुछ भी नहीं है सो देखो बिल्कुल सेम अपन पता ना जो अपन +1 स्टेट्स ऑफ मैटर च करते हैं बच्चे PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ P =N/V/RT N/V ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ ਸੋ ਮੈਂ ਨੋਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ E0 का 0.34 - 0.34 ਹੀ ਆਊਗਾ ਸੋ E = E0 minus 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी आएगी दो हाइड्रोजन्स ने मिलकर दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कॉपर ने दो गेन कर ले सो n = 2 log ऑफ प्रोडक्ट्स वाली साइड पे बच्चे सिर्फ H पॉजिटिव है सो H पॉजिटिव दा स्क्वायर यानी कि 0.01 दा स्क्वायर क्लियर है अपॉन कॉपर 2+ 0.1 मोलर इनटू सो बच्चे ਆਪਾਂ ऐसा लिखांगे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਰਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ log of H positive ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ अपॉन copper 2+ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अगर अपन को H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी होंगी वैसे नॉर्मली नहीं देंगे पार्शियल प्रेशर ही देंगे तब आप पार्शियल प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन के नाल लिख सकते हैं ऐसे ही लिखना है ठीक है सो हुन अपनी वैल्यूज की हो गई H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर सो 0.01 यानी कि 10⁻⁻² दा स्क्वायर अपॉन कॉपर 2+ दी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 0.1 इनटू partial pressure of H2 is 0.2 so this is the Nernst equation ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ gaseous substances ਨਾਲ use ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ so this is how to write Nernst equation for different kinds of electrochemical cells so ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ examples ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ठीक है लिख के नोट्स विच भी कुछ एग्जांपल्स दित्तियां हुई हैं नर्नस्ट इक्वेशन दियां ठीक है ना सुनो मैं पेजेस दस्से हुए हैं कि केड़े-केड़े पेजेस ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ in the next lecture यानी कि कल ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ the numericals related to Nernst equation ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ
ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੱਚ, ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ 1 ਮੋਲਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ कि why do we take the starting concentration as 1 molar? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈਲਸ ਲਏ, ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮੋਲਰ ਲਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਮੋਲਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣ, ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ 1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 1 1 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1, log of 1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਸੋ ਜਿਹੜਾ E ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ E0, ਯਾਨੀ ਕਿ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਜ਼ 1 ਮੋਲਰ, तो सारे दी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तब बच्चे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पोटेंशियल उतना ही मिल रहा है। सो उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ नर्नस्ट इक्वेशन ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ इक्वेशन ਦਾ मतलब है बच्चे कि नर्नस्ट इक्वेशन ਕੀ है? डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर तो वेरी करूगी फिर अपना पोटेंशियल वेरी करूगा, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮੋਲਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ E0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, and then we need 2 or 3 more lectures to wind up this chapter. So keep studying and revising bache and stay fit and fine. Thanks a lot.